अरे यार कौन है भाई? सेंटर से लाइट दो यार मैम। हमारे बाबा है अपने मैम लुक इधर। मैम राइट साइड राइट साइड। मैम राइट साइड में हमारे इधर बड़े वाले कैमरे में और ये जो प्लेटफॉर्म है यूनिवर्सल आइडल, आई थिंक इससे बेहतरीन प्लेटफॉर्म सारे देश विदेश में जो भी सिंगर्स है, जो एस्पायरिंग सिंगर्स है, वो इस पर पार्टिसिपेट करेंगे। आई थिंक इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया टू शोकेस टैलेंट फ्रॉम इंटरनेशनल एंड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। और आई विश सक्सेस टू द एंटायर टीम out here to bring this initiative and to reach out to all the audiences from national and international spheres. तो दो पंक्तियां मैं गाना चाहता हूँ। इनफैक्ट मैं अभी म्यूजिक क्लासेस से आ रहा हूँ। मैंने हाल फिलहाल 4 सालों से, पिछले 4 सालों से मैं सुरेश वाडकर जी के यहाँ से हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। करेक्ट। आई थिंक बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव है इंडियन आइडल का, यूनिवर्सल आइडल, क्योंकि आई थिंक देश विदेश में बहुत सारे ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट हैं जिनको प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्लेबैक सिंगिंग तो नहीं होता है, सब कुछ म्यूजिक वीडियोस तो नहीं होता है, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता है। और आई एम श्योर इतने सालों में हमने बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट को देखा है जो ऐसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आगे बढ़ते जा रहे हैं। So I wish success to the entire team of Universal Idol, and may they keep roaring and roaring and scaling greater heights. Just 2 lines. ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए, नीले नीले अंबर पर चांद जब आए, प्यार बरसाए, हमको तरसाए। ऐसा कोई साथी हो, ऐसा कोई प्रेमी हो, प्यास दिल की बुझा जाए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। नरेश पीछे। नरेश बैठ रहे। इसका काम चल रहा है, ब्रीफिंग ले रहा है, ब्रीफिंग को लेने
लाइटिंग बंद करना नहीं। रील बनाना चाहिए। ए नरेश लेट में आ रहा हो गया आइए नील सर। अरे लाइट दे भाई नीचे। नरेश नील सर सेंटर नील भाई राइट साइड नील भाई राइट साइड नील भाई राइट साइड क्लोजर सर क्लोज राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड राइट यार सामने देखो हो रहा और किस कैमरा नो थैंक यू। और वेट होल्ड ये थैंक यू मत बोल रहे। अरे रुको भाई ये नाइस। And is the director for events and planning at Universal Ideal. So this is the team. Of course, even I am there, but that brief will be given by the Neil. We'll also have our most important personality, most important person for today's evening, our brand ambassador, Mr. Neil Nitin Mukesh. So I think he doesn't need any introduction, but he doesn't need any introduction. He himself is a brand. He has an introduction. We'd like Imtiaz Bhai to felicitate Neil. We have a short video, kind of a surprise for Neil. Neil Nitin Mukesh. Today, the versatile Neil Nitin Mukesh. Neil's journey is unique as he is the torchbearer for one of Bollywood's most respected family dynasties. A legacy built not in acting, but in timeless world of music. In fact, Neil's full name, Neil Nitin Mukesh Chand Mathur, is an homage carefully structured to include the names of both his father and his grandfather. The voice of the millennium, Mukesh. It all begins with his legendary grandfather, Mukesh. Though Neil never met his grandfather, he often speaks of the immense pride he feels in sharing and carrying forward that illustrious name. Forging his own path, Neil Nitin Mukesh, born into a family of iconic singers, it would have been easy for Neil to simply follow the musical path. However, he chose to pursue a different creative passion, acting. He trained at the Kishore Namit Kapoor Acting Institute, and after a few childhood appearances, he made his full-fledged debut as the lead in the acclaimed 2007 thriller, Johnny Gaddar. His powerful performance in the non-traditional role instantly set him apart. I used to say thank you first of all my fraternity and all the media family that I have out here for taking time out for this very important and joyous occasion in all our lives. Abhay, thank you so much. Parul, again, thank you. Imtiaz Bhai, thank you so much for this honor and considering me worthy of this platform. It truly means a lot. Universal Idol, my journey started with Universal Idol, I think about a year and a half ago. No, that's fine. I mean, as long as they are fine. आप लोग बैठ सकते हैं. But मुझे लगा मैं कम से कम आप लोग को थोड़ा एक इंट्रोडक्शन दे तो दूँ कि कहाँ से जर्नी शुरू हुई. तो शकील भाई जिनके इंतज़ार में हैं, अभी फिलहाल अभी आए नहीं हैं, अभी आते ही होंगे. शकील भाई और मेरी मुलाकात हुई दुबई में करीबन ऑलमोस्ट 1-1.25 साल पहले. वहाँ पे मैं गया शकील भाई के लिए क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर मुकेश जी का सेंटनरी ईयर था. तो हम टूर कर रहे थे देश विदेश मुकेश जी को सेलिब्रेट करते हुए, और मेरी मुलाकात वहाँ पे उनसे हुई जो, और ये एक किस्म का एक जर्म था, एक आइडिया था जो शकील भाई के दिमाग में था कि नील हम सुनते आ रहे हैं ऐसे रियलिटी शोज़ के बारे में जो टैलेंट बस अपने देश में कॉन्सेंट्रेट करता है,
मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि कभी मौका मिले तो मैं करना चाहूँगा एक ऐसे बड़े पैमाने पे जो शो सिर्फ अपने ही देश के लिए नहीं बल्कि सारे देशों के लिए, सारे कंटेस्टेंट्स, क्योंकि उनका मानना है और शायद ये आप सब जानते हैं कि एक दिन देयर इज अ स्लोगन दैट गोज बाय दैट म्यूजिक इज अ यूनिवर्सल लैंग्वेज, हैज नो बैरियर्स, एंड आई थिंक दैट्स सो ट्रू टू व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हाट यूनिवर्सल आइडल टुडे मींस। ट्रूली इट्स रिमार्केबल जिस किस्म से इन्होंने आउटस्टैंडिंग गांव खेड़े का लड़का था, 11 साल का लड़का, और क्या उसने यानी तबला बजाते हुए sang also, and हाँ there was a blind young fellow, नहीं पर एक का नाम मेरे दिमाग में है, ज़बान पे आ नहीं रहा, बहुत ही प्यारा नाम है, के साथ था। इनफैक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे उसने मैसेज भेजा, याद आता मैं एकदम से बताता हूँ क्योंकि इतनी कहानियाँ सुना रहा हूँ आपको, शायद नाम सेंस नहीं, बट इतने सारे लोग हैं और मैंने दिल्ली में तो खुद पर्सनली देखा, इतने ऑडिशंस कर रहे हैं और क्या टैलेंट था, एक में क्या क्या टैलेंट था। यानी बच्चा 12 साल का, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस गुरु से इसने तालीम हासिल की। तो जब ये टैलेंट है, ये मंच है, और ख़ास तौर पे ऐसा मंच जहाँ आपकी उम्मीद जगह है, तो क्यों नहीं। आई थिंक पर्सनली ये बहुत बहुत ज़्यादा ही इनोवेटिव एक सोच थी, बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि प्राइज मनी वाकई में सच है। बट जोक्स अपार्ट, आई थिंक ऑल kudos to Imtiaz bhai, to Shakil bhai who is yet to come, and of course the entire team. Now we have Abhay, we have Ashish bhai who joined the team, and looking forward to this. हाँ जी। तो और हर कंट्री में ऑडिशन राउंड के बाद करीबन 10 से 20 के बीच में पार्टिसिपेंट्स आप चुन रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, 6 फाइनलिस्ट हो रहे हैं आपके ऑडिशन, और आई रिमेंबर दैट कि 6 फाइनलिस्ट हर कंट्री से जाएंगे फाइनल राउंड के स्टेज में, बट एंड सीजन 1 में। पर हाउ मेनी कंट्रीज आर यू कवरिंग? 18 कंट्रीज। वाओ, दैट्स क्वाइट द फीट। जी, इनका बड़ा अच्छा सवाल है कि नहीं, पहले तो इन्होंने तारीफ कर ली कि अकम्पलिश्ड एक्टर हूँ, एक म्यूजिकल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। नहीं, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो यहाँ से मैं बस उठ के निकल जाऊँ, इतनी आप तारीफ कर रही हैं, थैंक यू। बट नहीं, देखिए, मैं हमेशा मानता हूँ कि मैं कोई जज नहीं हूँ, मैं बिल्कुल जज नहीं कर पाता, मैं इंसान हूँ, और मेरे घर में मेरे पिताजी हैं, मेरी लेगेसी एक किस्म से बिलोंग करता हूँ मैं म्यूज़िकल फैमिली को, जी हाँ, और बचपन से मैं अपने गुरुजी के साथ बैठकर रियाज़ करता हूँ। इनफैक्ट मेरे दादू के गुरुजी पंडित जगन्नाथ प्रसाद जी मेरे भी गुरुजी रह चुके हैं, तो पियानो बजाता हूँ, म्यूज़िक का बहुत शौक़ है, बट मैं उस हिसाब से अपने आप को ट्रेन नहीं समझता जो कि जैसे मेरे पिताजी हैं या मेरे दादाजी रह चुके हैं। बट मैं दिल की आवाज़ समझ लेता हूँ, सुरों का पक्का हूँ, नहीं कहूँगा कि मैं बाथरूम सिंगर हूँ, तो थोड़ा मुझे नॉलेज है म्यूज़िक के बारे में। तो बस मेरा क्राइटेरिया है 2-3 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप इतने बड़े मंच पे अगर जा रहे हैं, तो पहला तो स्टेज प्रेजेंस, आपका स्टेज प्रेजेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी आवाज़, आपका डिक्शन, आप जो गा रहे हैं वाकई दिल से गा रहे हैं कि नहीं। क्योंकि टेक्निकल तो बहुत लोग गाते हैं, बट जो लफ्ज़ आपके मुंह से निकल रहे हैं, क्या उसकी मतलब क्या उसका मतलब आप समझ के गा रहे हैं या ऐसे ही गा रहे हैं? क्योंकि मुझे याद है, मैं एक थोड़ा एनेक्डोट देता हूँ। मैं अपनी फिल्म कर रहा था जॉनी गद्दार श्रीराम राघवन जी के साथ, और बहुत अच्छे से फिल्म शूट हो गई। यानी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई मुझे 10 टेक लगे किसी एक शॉट में, कभी कभार एक शॉट में, एक टेक में शॉट सही हो गया, तो कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार, एक्टिंग बड़ी अच्छी कर रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेन किया हुआ हूँ। श्रीराम सर खुद हैं, बहुत सारे मेरे जो पूजा लग्घास होती है जो मेरा सपोर्ट कर रही हैं और करते आ रही हैं, इस पर शूट आसान था। पर जब मैं डबिंग पे पहुँचा, तब मुझे एहसास हुआ कि एक माइक के सामने
वही चीज़ दोहराना, वही डायलॉग वापस बोलना कितना मुश्किल है। हम तो घर पे गाते हैं, मुकेश जी के गाने गाते हैं, किशोर दा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, किशोर दा के गाने मैं गाता हूँ, बट तब एहसास हुआ क्योंकि श्रीराम बहुत नाराज़ थे। उन्होंने कहा कि भाई ये तेरे से डबिंग नहीं होना, और उन्होंने कहा कि शायद तेरी आवाज़ मुझे डब करनी पड़ेगी किसी और से। मैं डर गया, मैं कह रहा हूँ कि यार मैं मुकेश जी का पोता हूँ, मैं नितिन मुकेश का बेटा हूँ, अगर मेरी आवाज़ डब हो गई और वो भी मेरी पहली फिल्म में करियर तो शुरू होने से पहले ही खत्म, तो मैं बहुत नाराज़ था। और कहीं एक डिक्शन कोच वहाँ पे उस समय, उनके बारे में मेरे डबिंग आर्टिस्ट ने, डबिंग रिकॉर्डिस्ट ने मुझे उनका नंबर दिया, कहा कि नहीं तुम जाके एक बार उनसे मिल लो, शायद ये तुम्हारी मदद करें। तो मैं गया उनके स्टूडियो, उनका नाम था डॉक्टर वनमाली। डॉक्टर वनमाली एक नेशनल अवार्ड विनिंग स्पीच थेरेपिस्ट हुआ करते थे, अब हमारे बीच हैं नहीं, बट मैं उन्हें भगवान इसलिए मानता हूँ क्योंकि मैं एक ही लेसन के लिए गया उनके पास, और मैं जब गया तो उनके स्टूडियो बहुत छोटा सा एक 2x2 का एक स्टूडियो था, और मैं वहाँ पे बैठा, उनको मैंने अपनी कहानी सुनाई कि सर परेशानी हो रही है, मैं डब नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी आवाज़ मैं निकाल तो रहा हूँ, मुझे तो लग रहा है कि मैं लिप सिंक करके अच्छे से टेक्निकली एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, बट श्रीराम सर बड़े नाराज़ हैं। वो कह रहे हैं कि जो तू कह रहा है उसका मतलब मैं दिल से नहीं कह रहा है। तो ऐसे सर ही दिल से नहीं कह रहा है का मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने बस मुझसे मुझे एक माइक दिया और मुझे कहा कि ये कोई भी अपनी फिल्म का एक डायलॉग उठाओ और डायलॉग बोलो। कोई भी एक लाइन थी फिल्म की जो मैंने उनसे कही, और उन्होंने कहा नहीं मुझे तुम्हें सुनना है, तुम्हारी आवाज़ में। बस एक इस लाइन से मैं समझ गया कि उनका मतलब क्या था। उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज़ कितनी अच्छी हो, खराब हो। उन्होंने मुझे कितने बड़े बड़े सितारों के उदाहरण दिए जिनकी आवाज़ इतनी अच्छी है नहीं, बट आज भी लोग उनके बारे में जानते हैं क्योंकि जिस किस्म से वो अपना प्रोजेक्शन करते हैं या जिस किस्म से अपना डायलॉग बोलते हैं तो लोग वाकई में कनेक्ट होते हैं। तो शायद वो जहन में मेरे रह गया था, और शायद इस बार जब मैं आया तो शायद यही मेरे दिल और दिमाग में था कि मुझे इनकी आवाज़ के साथ साथ इनके दिल की बात भी सुननी है। तो आई थिंक दैट वाज मोस्ट इम्पोर्टेंट। किसान कुछ आपने तो गलत आदमी से ये सवाल पूछ लिया क्योंकि बहुतों के लिए ग्रेटिफिकेशन का मतलब होता है प्राइज मनी हो या कुछ हो। मैं मुकेश जी का पोता हूँ, मैं तो मुकेश जी का बेटा हूँ। मेरे लिए ग्रेटिफिकेशन सबसे ज़्यादा है पहचान, और कोई मुझे उसके लिए इज्जत दे मेरे काम के लिए, ऊपर वाले से बस यही शुक्राना करते रहता हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कम से कम इस लायक तो बनाया कि कहीं पे भी जाऊँ तो लोग पहचानते तो हैं, है ना। तो पैसे कमाने के ज़रिए बहुत सारे होते हैं ज़िंदगी में, और ऑफ कोर्स मैं तो बीच में बैठा हूँ, बट महारथीज मेरे सामने यहाँ पे सब अव्वल नंबर के बहुत तोपदार प्लेयर्स हैं इस मार्केट में। रियल एस्टेट जायंट, रियल एस्टेट फाइनेंस जायंट, एंटरप्रेन्योर्स, रेस्टोरेंटर्स एक्सेट्रा, मल्टीपल बिजनेसेस, और मैं एक कलाकार। तो हाँ, कभी कभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स महसूस करता हूँ जब इन लोग से बात करना होता है बट ग्रेटिफिकेशन मेरे लिए सबसे ज़्यादा यही है कि लोग इज्जत दें, लोग प्यार दें। आप लोग इतने तादाद से इतने नंबर में आज आए हैं, इतना खुश महसूस कर रहा हूँ, इतना अच्छा लग रहा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सवाल इसलिए फुली नहीं आपका जवाब दे रहा क्योंकि मैं सुनना चाह रहा हूँ इन प्रोड्यूसर्स से। So ये फर्स्ट सीजन की प्राइज मनी इज रफली अराउंड अप टू $1 million। सो ये हमने प्राइज मनी रखी हुई है फर्स्ट सीजन की अप टू $1 million। सो ये इसीलिए रखी है कि ये कोई, जैसे नील जी ने कहा कि किसी लोगों के लिए प्राइज मनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, किसी के लिए पहचान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है।
पर जैसे उन्होंने कहा कि वहाँ पे 11 साल के बच्चे थे, 12 साल के बच्चे थे जो बहुत छोटे छोटे गांव से आए थे, तो उनके लिए शायद से पहचान पर मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि प्राइज मनी। तो हमने प्राइज मनी इसीलिए रखी हुई है कि शायद से इनसे जो कोई उनका फ्यूचर बन पाए। सो दैट्स रेटिफिकेशन फॉर दिस सीजन 1। वेरी वेल सेड। यू नो, पहचान इम्पोर्टेंट है और साथ साथ पैसे भी। आज का इनफैक्ट मेरी पहली फिल्म और पहला गाना ही ये था कि पैसा फेंक तमाशा देख। तो आज भी वही देख रहा हूँ कि जिसकी इज्जत होती है, जिसके पास जिसकी जेबें गर्म होती है ना, टिपिकली सेइंग दैट। बट सही कहा आपने कि बहुत छोटे छोटे गाँव से बहुत टैलेंटेड लोग, टैलेंटेड बच्चे हैं जो इस सपना देख के आ रहे हैं कि शायद उनकी ज़िंदगी सेट हो जाए। और शायद इस वजह से भी एक कारण था जो मैं जुड़ना चाह रहा था कि कम से कम अगर मैं जुड़ूं, मेरे ज़रिए कहीं तक तो पहुँचे, कहीं तक तो आवाज़ हम लोग शायद कर पाएँ। तो उसके लिए वापस बहुत सॉरी दादा, आप कुछ कह रहे हैं? अच्छा, शो टेलीकास्ट कहाँ होगा? पारुल कहना ठीक है। फिलहाल तो मैं आंसर करूँगा, आप ही करेंगे? आप कर लेंगे सर? हाँ, आप कर लें। हाँ जी। सो एट प्रेजेंट ये यूट्यूब पे लाइव आएगा जब ये शो, बॉम्बे भी देयर आर 2 ऑडिशंस आर गोइंग टू हैपन इन मुंबई एंड हैदराबाद इंडिया में। दिल्ली ऑलरेडी हो चुका है, बॉम्बे एंड हैदराबाद वेरी सून इन अपकमिंग मंथ है। And we are going to tie with a lot of other channels, I mean on social media platform, So, and also in TV channels. right. I'll just take this up from here. So just to give you a little bit of an insight of what I think Imtiaz and of course even Shakil sir who are planning on this one, with of course with your permission on finance. ये शो टेलीकास्ट टिपिकली टेलीकास्ट वाला है नहीं, अभी हम शूट करने वाले हैं। ऑफ कोर्स जाहिर सी बात है कि क्योंकि ऑडिशंस इतने बड़े पैमाने पे होंगे तो हर कंट्री के ऑडिशंस की क्लिप्सेस आप यूट्यूब चैनल्स पे देखेंगे ज़रूर। बट फाइनली इसका पूरा एक शो बनाने की हम उम्मीद कर रहे हैं कि शायद सारे कंट्रीज़ का एक फॉर्मेटिंग करते हुए अच्छे से एक बड़े पैमाने पे शो करते हुए कोई हमारे आज इतने सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म्स है OTT के, तो वहाँ पे शायद एक 8 एपिसोड या 10 एपिसोड करते हुए, क्योंकि इतने सारे कंट्रीज़ हैं तो एक पूरी जर्नी बहुत है, बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे लोग हैं। और मैं तो चाहता हूँ और मैं तो वादा कर सकता हूँ कि लोग देखना चाहेंगे। तो मैं तो उम्मीद ही कर रहा हूँ कि शायद इस जर्नी में मैं भी हिस्सा हूँ। बट हाँ जी, Rightly said by you. So हम स्टेप बाय स्टेप तो शोर आगे लेके जाएंगे एंड हम चाहेंगे कि ये इसके एपिसोड्स हम आगे जाके रिलीज करें। तो हमारा यही टारगेट है कि सेमीफाइनल राउंड हमें करना है। तो मैंने क्या करा है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टेक 120 कंटेस्टेंट ऑल ओवर, मतलब जहाँ जो ऑडिशंस की है। सो वी वांट टू टेक ऑल ऑफ देम टू दुबई फॉर सेमीफाइनल टॉप 20, जिसका राउंड का नाम है टॉप 20। दैट टॉप 20 पीपल वी वांट टेक देम टू सम अदर मिडिल ईस्ट कंट्रीज और फिर फाइनल हुआ इंडिया। लेट्स सी दिस आवर प्लानिंग। फिलहाल में अभी ऑडिशंस किए 15 कंट्रीज फॉर 18 कंट्रीज टू गो। मैंने एक एपिसोड बनाया ये टोटल ऑडिशंस का। देन वी गोट टू एक और ऑडिशन और दिस कंटेस्ट टू दुबई, और दुबई के बाद फाइनल करेंगे इसका बहुत जल्दी अलग हो जाएगा। The whole planning is already told by Abhay sir. So finale, we are targeting Middle East, some country, and let's see, announcement will be done soon. Of course, it's in there. पारुल जी ये कंडीशन मैं ले चुका हूँ इनसे, हालांकि मेरे कॉन्ट्रैक्ट में है नहीं, बट मैंने इनसे दावा ले लिया है और भाई के रूप में इन्होंने मुझे वादा कर दिया है कि ये मेरे साथ एक म्यूजिक वीडियो ज़रूर बहुत जल्द करेंगे। कास्टिंग डायरेक्टर हमारे साथ बैठे हैं अभी भी। बट जोक्स अपार्ट,
I think the idea is that. The idea is to take the platform, raise the bars, get like-minded artists and all of us coming together and then starting it to that the journey is just begun. Sorry, Ji. Thank you. Ji. So am I. We have a question from. Right. We have a question from the हाँ press. जी, sorry दादा। जजेस के तौर पे कौन कौन रहेंगे? जजेस के तौर पे सर जजेस कॉन्स्टेंटली हर कंट्री में अलग अलग जजेस वहाँ से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जो कि वहाँ लोकल स्टार्स हैं, लोकल बहुत बड़े उनका कलाकार खुद भी हैं। जैसे जज, जैसे एक दिल्ली के राउंड का जज मैं खुद भी रह चुका हूँ, बट हर कंट्री में अलग अलग जजेस रहेंगे। कोई एक ऐसा फाइनल जज, एक जज है। कोई रिनाउंड सिंगर होंगे? हाँ जी, कोई रिनाउंड सिंगर होंगे? कोई ऑफ कोर्स सर, ऑफ कोर्स। अब वो सारे पत्ते आपके साथ आपके सामने हमें खोलेंगे तो ये तो आज पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और बहुत सारे ऐसे कलाकार और नाम जुड़े हैं जो आगे हैं। तो एक बहुत अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान हुई है जो आपको 1 दिसंबर से लाइव दिखेगी, बिकॉज 14 दिसंबर इज एन एपिसोड, आई मीन इट्स ऑडिशन इन मुंबई। वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ऑफ कोर्स मुंबई है, हमारे सबके दिल के बहुत ही करीब है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मुंबई के जितने भी लोकल कलाकार हैं, आर्टिस्ट हैं जो चाहते हैं कि देश विदेश में अपना नाम बढ़ाएं, मुंबई 14 December is Mumbai auditions, and I think I'm hoping everyone comes in big numbers. जी? कहाँ पर होगा? कहाँ पर होगा? We'll be announcing all the platforms and all the places within a week. एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया क्या रहेगा? No age criteria है सर, कोई age criteria नहीं। The Universal Library. इस पूरे इवेंट का मकसद क्या है? 18 कंट्रीज में आप लोग टारगेट कर रहे हैं, व्हाट इज द मेन मोटिव बिहाइंड दिस? ऐसे क्या कुछ चीज़ें आप करना चाहते हैं या फिर टैलेंट्स को बढ़ावा देना चाहते हैं? आई वांट अदर्स टू टॉक अबाउट दैट। Of course, हम टैलेंट्स ढूंढ रहे हैं across the globe. There are different talents. कोई बहुत अच्छा सिंगर है, we have found a very good opera singer. So multiple talents मिले हमें. So we are exploring talents and we are planning an album with the talents. एक फर्स्ट एल्बम बनाएंगे कॉल यूनिवर्सल आइडल। But I feel सर कि आपके सवाल का अगर जवाब वाकई में देना है तो देखिए कंपटीशन एक बड़ा सख्त शब्द हो जाता है कि हम compete कर रहे हैं, बट जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में कहा था कि म्यूज़िक हैज़ नो बैरियर। हम हमारे म्यूज़िक अगर हम देखें तो सही मायने में जुगलबंदी हम जिस बारे में बात करते हैं तो कितना अच्छा लगता है ना, किसी देश का कोई टैलेंट आके यहाँ पे अगर आता है, जैसे अगर आज हमारे पास इतने अच्छे स्टार हैं, कलाकार हैं और आते ही रहते हैं यहाँ पे, इतने बड़े बड़े पैमाने पे शोज होते हैं, हाल ही में इतने बड़े स्टार्स आके जा चुके हैं, तो क्यों ना ये एक ऐसा मंच मिले कि जहाँ हर टैलेंट अपने साथ में मिले। क्या पता कल को जाके कुछ एक नया जुगलबंदी जैसा बन पाए, कुछ एक नई चीज़ निकल पाए म्यूज़िक के रूप में। हाँ जी। मिलवा राइट साइड, मिलवा राइट साइड, राइट साइड, राइट साइड, मिलवा राइट साइड, मिलवा राइट साइड। आपका विजुअल इधर ही होएगा भाई, सबको इधर ही होगा। मिलवा राइट साइड, मिलवा राइट साइड। थैंक यू मिलवा। और राइट साइड, और राइट साइड, ओ राजन भाई, नाइस। गार्डन में बैठे और राइट साइड, और राइट साइड। ये कैमरा नीचे कर। अरे भाई जूम नहीं कर सकते। ये तो इंटरव्यू का हो रहा है फिल्म। जब इंडिया में रहकर रियलिटी शोज देखते हैं, टैलेंट से ज़्यादा उनकी लाइफ स्टोरीज होती है, ये सब जो ड्रामा आसपास होता है वो देखते हैं।
I guess multiple cultures. 18 countries, हर country की अपनी language, अपनी कला और सब एक साथ देखेंगे और आप देखेंगे कैसे कहाँ से टैलेंट आके एक साथ compete करता है. एक लैंग्वेज में एक ही कंट्री में टैलेंट चूज करना थोड़ा मुझे लगता है आसान. जब मल्टीपल कंट्रीज आती हैं इट्स जस्ट बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग. Thank you so much. अच्छा ये कौन आया बाहर कोई है शिव ठाकरे कोई फुटेज दिया नहीं अभी तक, सब भेज दे, लगा दे. Singer, we would love to hear a line from you. 마두호시 기회자에 너를 처음 만난 순간 느껴서 말라 어둠 가득한 밤 헤매이던 날 빛나는 별들 사이로 내게 빛을 내려줘 뜸한 말을 들어 저주 속으로 예상했다니 마두호시 기자에 너를 처음 만난 순간 느껴서 말라. Thank you. 믹송. 처럼 말해서 자기자기라 부카를 투제순 나되어 이툰 지미 아자. We together Jimmy 아자. Okay. One more. Oh, okay. मैं क्या गाऊं? ये गाने का अगर इनके सामने मैं कहाँ ना बताऊं. अभी किसी ने हाल ही में पूछा अपने गाड़ी में कौन सा गाना सुनते रहते हैं. हालांकि हूँ मुकेश जी का पोता, किशोरदा का बहुत बड़ा फैन हूँ, बट एक ही उनका गीत है जो मेरे दिल के बड़ी करीब है और वो गाना मैं गाते रहता हूँ. आज कोशिश करता हूँ एक लाइन कुछ और गाना निकाल लेता हूँ, बट किशोरदा मेरे दिल में है, मुकेश जी दिल में. दिल संभल जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू. दिल यहीं रुक जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तू. थैंक यू. मुझे लगता है ऐसा प्लेटफॉर्म की लोग बहुत इंतजार करते हैं और अभय हमारे भाई हैं और उनके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म लोगों के लिए तैयार हो रहा है जिसकी सच्ची में ज़रूरत होती है. छोटे शहर हो बड़े शहर हो आर्टिस्ट बहुत है और ऐसे प्लेटफॉर्म का लोग इंतजार करते हैं, तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं. Thank you, Shiv. Thank you so much. Vishal, can we have you here, please? विशाल भाई आप प्लीज यहाँ पे आओ. Vishal, the Universal Idol is so amazing. He is so wonderful, and we are really honored to have him on board. For this, आप क्या कहेंगे प्लेटफॉर्म के बारे में? यह बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है. हमने बहुत सारे सिंगिंग रियलिटी शोज देखे हैं इतने सालों से और सिंगिंग रियलिटी शो से बहुत सारे कलाकार हमारे इंडस्ट्री को मिले हैं.
तो अभी यूनिवर्सल आइडल जो है वो पूरे दुनिया में लोगों को ढूंढ रहा है, सिंगर्स को ढूंढ रहा है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सारी दुनिया के लोगों के लिए टू कम इनटू द लाइमलाइट एंड शोकेस देयर वॉइस। थैंक यू विशाल, थैंक यू सो मच। बोल बा चाहूँगी कि इन्होंने जो बड़ा टैलेंट का अवार्ड खोला है मतलब शोज, तो बहुत सारे न्यू लोगों को चांस मिलेगा। एंड जहाँ तक मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग उम्मीद लगा के बैठते थे एक मौका मिले, इसके बहाने उन्हें बहुत सारा मौका मिलेगा। एंड उन सबके लिए मेरी तरफ से गुड विशेस। Congratulations to Universal Idol and प्लेटफॉर्म तो बहुत अच्छे अच्छे वर्ल्ड वाइड टैलेंट इतने छुपे हुए हैं एंड इंडिया में कितने हैं। वंडरफुल प्लेटफॉर्म एक्चुअली मैं कहना चाहूँगी कि ऐसे आगे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जिसकी वजह से हमें इतने सारे अच्छे सिंगर्स मिले, नॉट इंडस्ट्री को, लेकिन हम जब भी कोई गाना प्ले करके सुनना चाहते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं ये गाना ये सिंगर, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। और यूनिवर्सल आइडल इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, तो और भी हमें अच्छे अच्छे सिंगर्स मिलने वाले हैं। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल टीम। वैसे मैंने गुजराती एक्ट्रेस हूँ, मैंने खुद भी गुजराती गाना गाया है, तो आई नो मतलब गाने का क्या प्रभाव होता है, मतलब हमें हर मूड, हमारा हर अगर मूड कुछ भी चेंज करना हो तो गाना हमें कितना हेल्प करता है। एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन दिस यूनिवर्सल आइडल प्लेटफॉर्म। बहुत ही आगे बढ़े और अच्छे अच्छे सिंगर्स फ्यूचर्स में हमें मिले। थैंक यू सो मच। Hi everyone. I think it is great that Universal Idol is promoting musicians. I am a big promoter for music. I mean, I handle music in Balaji for almost 20 years. I still do A&R for them. And I think इतना talent है इंडिया में और म्यूजिक और डांस में स्पेशली, और इतने कम प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे एग्जिबिट करने का मौका मिलता है। So I congratulate the team and I think we'll see some amazing talent because I'm amazed with social media booming with so much talent. और जब एक clear platform मिलता है तो I think it's bonus है। Thank you so much। लॉन्च होता है और यंग टैलेंट को एक मौका दिया जाता है। बहुत अच्छा है, हमारे ज़माने में ये सब नहीं होता था, नहीं तो अभी मैं भी माइक के साथ होती और यहाँ मुख्य अतिथि मैं ही होती। So I'm so happy कि अब youngsters को बहुत सारे platforms मिल रहे हैं, youngsters के I think all age, everybody is getting a platform and it's very good। Universal Idol could be बोल रहा है that it's universal and Neil is a brand ambassador, so Neil से बेटा तो कुछ हो ही नहीं सकता। and brand ambassador ऐसा होगा तो definitely उसके results भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। I think Neil के साथ आपका एक special bond बना है because आप उनके साथ एक picture भी बनाई है। हमारा मिलना मुझसे रह गया, but any message you want to give to Neil? Neil वही है right side में, but Neil का मैं यही बोल सकती हूँ कि Neil जैसा इंसान मैंने कोई देखा ही नहीं फिल्म इंडस्ट्री में। Neil is like amazing, amazing। Neil, I'm just praising you। No, that's a fact। जब सारी दुनिया आपका हाथ छोड़ देगी, नील आपका हाथ पकड़ा हुआ आपको खड़ा मिलेगा। That's it। Let's get a warm round of applause for Neil for being here and we're so happy to have him। आगे तो बजा दो थोड़ा कैमरा छोड़ के नील के लिए। Come on। बनाया गया है, ये बहुत ही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। जिनके अंदर टैलेंट होता है उनको प्लेटफॉर्म की तलाश होती है एक्चुअली। जब उनको प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो कहीं ना कहीं उनके सामने एक रास्ता बन जाता है कि एक सक्सेस का रास्ता, अपना टैलेंट दिखाने का रास्ता। और मेरे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी है, मेरी आवाज़ एक्चुअली ऐसी है नहीं, थोड़ी सी अच्छी है, बट आज थोड़ी सी बेसुरी लग रही होगी क्योंकि गला बैठा हुआ है ना। और क्या बोलूँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर पार्टिसिपेंट इसका हिस्सा होकर। बाकी सिंगिंग तो मुझे नहीं आती तो मैं भी गाना वाना गाती, बट जो अपने सर है नील नितिश जी, आपके फादर का पापा का एक गाना है, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बात है। तो अक्सर मैं जब भी सेवा करती हूँ, सोशल वर्क करती हूँ, तो मैं हमेशा वही गाना चूज करती हूँ। तेरा किया आगे आएगा, सब कुछ है क्या। हो जाए जी, वो बच्चे यही थे। हो जाए बहुत ही अच्छा है। मैं चाहूँगी कि आप प्लीज़ मेरे साथ आके ये 2 लाइन बोले। ये वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग है जो मैं हमेशा हो जाए। सबसे फेवरेट गाना है, बता नहीं पा रही है। चलिए आपने स्टार्टिंग किया मुझे पता नहीं। जो बोएगा वही पाएगा, तेरा किया आगे
कुछ है क्या फल कर्मों का, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। क्या बात है, तो यकीन होता है कि कर्म जैसा करोगे वैसा ही लौट कर आएगा। ये गाना मैं जब भी सुनती हूँ और मुझे ऐसा लगता है ये गाना एक ऐसा सॉन्ग है जिससे इंसान को अकल भी आती है, जो थोड़े से भटक जाते हैं इधर उधर कर्मों को मानते नहीं है, डेस्टिनी को। मेरा तो सिर्फ एक ही मानना है, बहुत यहाँ पे शायद जानती नहीं है, बट मैं सिर्फ कर्म पे विश्वास करता हूँ और कुछ नहीं। आपके कर्म अच्छे हैं, आप इंसान किस तरीके से आप इंसान के साथ आपका व्यवहार कैसा है, उसमें बहुत बहुत चीज़ें आपके बारे में समझ में आती हैं और कर्म से ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई चीज़ नहीं है। तो जी हाँ, ये गाना उस शब्द को और कर्म को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग गाना है। क्या बात है, काश मैं अपनी मम्मी को कह पाती, मम्मी देखो ये गाना तुम सुनती हो, मैं आज उनके साथ खड़ी हूँ और साथ में गाना भी गा रही हूँ। अब तो छोटे से कस्बे से आके आज यहाँ पर सब कुछ मेहनत करते करते यहाँ तक आए, तो हमारे लिए तो बहुत बड़ी बात है। मैं आपके साथ खड़ा हूँ। Not at all. The pleasure is all mine, and you worked very hard for this God bless you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you everyone. And I would thank everyone for joining